की भी वही स्थिति रही होगी। तो हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए कि अपने घर पे जो भी बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, उनके साथ में आप अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि ये आपने मूवी में भी देखा है, एक अच्छी सी मूवी थी बागबान, सबने देखी है ना। इसमें जैसा दृश्य दिखाया जाता है वही बिल्कुल रियलिटी में भी दिखा जाता है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। अगर आप अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो आपकी भी संतान, आपकी भी जो बच्चे होंगे, वो भी आगे आने वाली पीढ़ी भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। तो आज का विषय वाकई में बहुत ही अच्छा था। अब इसके बाद एक आज के क्लास की असेंबली के जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार फोटो के लिए आगे आ जाए। गैप है। मम्मी के मोबाइल में पापा का नंबर पापा से ही सेव है। 12 humanities and I am presenting an English thought. Each generation imagine itself to be more intelligent than the one that went before it and wiser than the one that comes after it. I repeat my thought again. Each generation imagine itself to be more intelligent than the one that went before it and wiser than the one that comes after it. Thank you. They are right. With this, let's welcome Riddhi for English thought. Speech. Thank you. Thank you for outstanding speech. Now I would like to invite Kavita for chart presentation. तो में क्या अंतर है? With this, a great good morning, respected principal sir, director sir, honorable teachers, and all my dear friends. Myself Divya Soni. And myself Simran Amarnani on the behalf of class 12 humanities welcome you all for a special assembly on generation gap. Now all of you get ready for the prayer. Now take your seats. Thank you, sir. Okay, class. Today you have to write an essay. Let's take the topic मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी. In this, you can write anything you want or you feel about your grandparents. Try that whatever you write in this essay should be based on truth, not the book. So are you all ready now? Yes, sir. So start writing. Stop writing. Time is over. I hope you all have done test properly. I'll let you know the scores by tomorrow. May I come in, sir? Yes, come in. Sir, I need to talk to you about something important. Yes, Mr. Ramesh. What happened? You are looking very upset. Sir, actually I took a test of class 7 on the topic मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी. All was going really well. But when I checked the test of Pradeep, I was shocked. That's why I am here. What exactly is written in Pradeep's essay? Sir, please go through it once. This is actually a thing to worry about. We should talk to Pradeep about this. अजय, 7th क्लास में से प्रदीप को बुला कर लाओ. Okay, sir.
morning, sir. Good morning. Hello, Pradeep. How are you, son? I am fine, sir. Come here, my son. Whatever you written in this essay, is it true? Yes, sir. It's true. Cool down, son. Cool down. I can understand your problem. Now, you won't be away from your grandparents for long. I promise you that. Now, you can go back to your class and study well. Thank you, sir. Mr. Ramesh, immediately call Pradeep's father and ask him to meet you. Okay, sir. क्या आप प्रदीप के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। आज आपको उनसे मिलना होगा। क्या सर कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए। ठीक है सर, छुट्टी होने से पहले मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा। ओके, थैंक यू सर। ये मिस्टर बजाज, बैठिए। नमस्कार सर, कहिए क्या बात है सर? आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। जी कहिए क्या बात है? क्या प्रदीप ने कोई शैतानी की थी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, उसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे से हिंदी में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में बात करोगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और कभी हमने इंग्लिश में बात भी नहीं की है। यह तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर हमारे लिए। मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करोगे तो थोड़े दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, लेकिन तब तक आप प्रदीप से बात नहीं करोगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। सर, हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमने अपने बच्चे को इस स्कूल में दाखिल कराया था, ताकि वो हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और जिंदगी में कामयाब इंसान बन सके। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हम अपने बच्चे से सिर्फ इसलिए बात करना बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। यह तो बहुत गलत बात है। आखिर वो हमारा खून है, हमने उसे जन्म दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर बजाज। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे निकल जाएं और लाइफ में कामयाब हों। हर पीढ़ी अंतराल के बाद सोच परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरी समझ में नहीं आया। ओके तो मिस्टर बजाज, मुझे एक बात बताइए कि जब आपके मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर खाने पर जाते थे तो क्या वो आपको घर पर भूखा छोड़ जाते थे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे माता पिता हमेशा मुझे साथ लेकर जाते थे, या फिर माँ हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा सा बनाकर जाती थी। अच्छा मिस्टर बजाज, आपके टाइम पर तो इन्वर्टर भी नहीं होता था, तो जब लाइट चली जाती थी तब आपके माता पिता क्या आपको घर के बाहर बैठा देते थे? नहीं सर, बल्कि मेरी माँ तो रात भर जागकर हम सबकी हाथ के पंखे से हवा करती थी। अच्छा ना मिस्टर बजाज, जब आपको बुखार होता होगा तो आपके माता पिता आपका इलाज भी नहीं करवाते होंगे। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे पिताजी तो मेरे बीमार होने पर खाना भी नहीं खा पाते थे और माँ और पिताजी रात भर जागकर मेरे सिर पर पट्टियां रखती थी। अच्छा ऐसा क्या? पर मुझे यकीन है कि फेस्टिवल पर माता पिता आपके लिए कुछ भी नहीं लाते होंगे। नहीं सर, बल्कि मेरी माँ इतने सरल स्वभाव की थी कि अपने लिए तो कुछ नहीं लेती थी और हमारे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या समय से पहले ही तैयार कर देती थी। पर आज आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आज हमने सब बच्चों का टेस्ट लिया था, जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। लेकिन आपके बेटे ने जो लिखा उसने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया। उसे ही दिखाने के लिए मैंने आपको आज यहाँ बुलवाया है। ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा के बचपन Class 12 Humanities standing in front of you all to deliver a speech. What
व्हाट इज जनरेशन गैप? एक पीढ़ी जो समझदार है पर ना समझ पा रही, दूसरी पीढ़ी जो ना समझ होकर भी समझ पा रही। कौन सही कौन गलत, इन दोनों में क्या अंतर है? When two set of people that are born in different year and have different views or opinions on the same topic, affected by this gap is relationship gap of parents and child. The difference between child ideology and thought process is very different from their parents. Our parents are more focused on things that they have been taught through the life, while we believe in what we see in our life. I want to explore all new possibilities. The world doesn't stop evolving. There is something every day. On the other hand, the older generation faces tough times, accepting these changes or adopting these changes. Every individual has their take on things, opinions, and their own thoughts process. That's what makes different from each other. But the difference should not be a fact, but our personal relationship. There are few things you can do to bridge this generation gap. Try spend more time with your parents. Try to communicate with them. Understand their opinions and views. Your parents have seen much more than you in life. You should listen to their valuable mentorship ideas and also put forward your innovative ideas. Try build relation with them. This would not only make you happy, but the transparency will develop more trust in your relationship. एक पल पास बैठ तो सही, घड़ी तो घड़ी बात तो कर, कुछ अपनी सुना कुछ उनकी भी सुन। तू एक पल पास बैठ तो सही, इस जनरेशन गैप को थोड़ा कम करने की कोशिश तो कर। तू एक पल पास बैठ तो सही। थैंक यू।